Hello YouTube. So today the date is 9th of December 2025 and it's the fourth week of our UPSC preparation and we are doing polity this week. We have started polity this week and today was the first test of polity and एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और बाकी सारे सही थे and pretty good. And yesterday we did active recall for the topics basics, political theory, constitution, evaluation of constitution, and preamble also we did. Yeah. Before I start with today's topics, I just wanted to mention something. Uh, right now, I just took a painkiller and was just lying down and was talking to a friend. And so for the context, I have migraine. I like get migraine attacks once in almost every week, and those who have migraine, they must be like knowing how it feels to have it. Like जब headache शुरू हो जाता है तो last year I remember when I was in the PRP course of Sarthi IS and Dr. Shivan sir also has migraine pain and he once came to class and it was like very much visible he was in so much pain and he still continued to take a 2 hours class ठीक है and it was very inspiring and he mentioned that human body is capable of doing anything that a human being makes it do ठीक है and it's very true actually because you really need to be disciplined and discipline also this doesn't mean that physical and mental health are to be taken for granted. I'm not at all vouching for it. In fact, I am one of those persons who always talk about it. Even in my last a lot of videos I have mentioned that I have been through a very horrible physical and mental health phases in my life and I have tried my best to get over them, and I also try my best to not get into into that phase again. And I also ask you all to please take care of your physical and mental health. But what I was just trying to say that I was literally like having a very bad day, and yet I didn't take the day off, and you must be understanding this that since my like identity is not yet revealed in this channel, so definitely I won't say something just to show off or just to like gain popularity or anything like that because I'm hiding my identity. So what I will do with the popularity, correct? But so you should understand that whatever I say here, it's absolutely honest, vulnerable, and like real talk, and I just mention my little achievements so that it you might hear it and you make it apply in your life and we all just get whatever we want. ठीक है, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। ऑल्सो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा ज्ञान देता था एंड दैट्स आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स नाउ, तो अवॉइड गिविंग ज्ञान गाइस। बट ठीक है, बहुत हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है आज हम लोग का आज पहला टॉपिक एंड आफ्टर दैट वी हैव यूनियन एंड स्टेटरी। इट्स का जगह नहीं बचा था गाइस, प्लीज मैनेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग का सिटीजनशिप है। ठीक है, so basic structure doctrine is one of the very important topics for prelims. Also माथुर सर of course, माथुर सर से पढ़ रहा हूँ मैं, तो माथुर सर एक ट्रिक बताए थे कि जो भी चीज़ें डॉक्ट्रिन हो ना, जिस भी सेंटेंस के पहले डॉक्ट्रिन लगाओ, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिबिलिटी, ये सब जब होता है, ये सब टर्म, ये सब फ्रेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, तभी उसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं, करेक्ट? मतलब डॉक्ट्रिन इज अ लाइक मेड अप थिंग। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, तो यूपीएससी पूछता है ना ऐसे सवाल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि अगर डॉक्ट्रिन लगा हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बात करें, आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, हम लोग बस यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल टीचिंग। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यही है कि basically it mentions that core elements of the Indian Constitution cannot be changed or removed. Correct. These elements are considered essential to the Constitution's identity and purpose. ठीक है, बस इतना ही हमें समझना है कि
ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आपका जो सोल है बेसिकली, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग पावर्स वगैरह है अंडर आर्टिकल 368। ऑल्सो प्रियम्बल में भी आप चेंजेस कर सकते हो अंडर 368। बट द थिंग इज कि आप चेंज तो कर सकते हो, पर कुछ चीजें आप नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ही कल ही मैंने बोला था कि जैसे कि प्रियम्बल में सेक्युलर लिखा हुआ है, तो आप कल ये नहीं बोल सकते मैं सेक्युलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। वो आपका रहेगा ही, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर आते आते जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके जजमेंट्स थे, उसका तो बहुत बड़ा टाइमलाइन है, ठीक है। वो ऐसे मुझे ऐसे मेरा फैक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत ही खराब है, आप लोगों को पता ही होगा। तो बट स्टिल जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट आपके जो जजमेंट्स हैं, उसको आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। जिसमें से एक तो आपका केशवानंद भारती है, ठीक है। केशवानंद भारती जो आपका वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो बहुत पॉपुलर केस है, ठीक है। वो आपका लार्जेस्ट जज बेंच केस है, 13 जज बेंच था वो, 7:6 में उसका रिजल्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको बस कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियल सील्ड भी बोल सकते हैं कि इस ये एक जुडिशियल इन्वेंशन है, और जुडिशियरी एक शील्ड की तरह इसको बनाया है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। अगर हम लोग इसका इमरजेंस देखें तो लाइक इट वाज देयर इन 1950 इन द शांकरी प्रसाद केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इवन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो बेसिकली गाइस देखो एक चीज कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर आप ये कर दो कि फंडामेंटल राइट चेंज ही नहीं कर सकते हैं, जो आपका एक बार 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, बस वही फंडामेंटल राइट रहेगा, तो इसका आप प्रॉब्लम समझ रहे हो। फायदा तो ये होगा कि हम लोग का जो राइट्स है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि 2025 में जाके जब हम लोग को लगेगा कि ये और एक फंडामेंटल राइट हमें ऐड करना है इसमें, तो हम लोग कैसे करेंगे ना। अमेंडेबिलिटी तो होना चाहिए, पर उसमें एक लिमिट होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा नहीं चेंज कर सकते हो, बट जब जरूरत हो तब चेंज तो करना ही पड़ेगा। भले आप रिमूव कुछ ना करो, ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो अमेंडेबिलिटी तो देना ही होगा ना फंडामेंटल राइट को भी। तो ये 1950 में सांकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इवन फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया जो कि आपका गोलकनाथ केस था, ठीक है। गोलकनाथ केस, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सैंक्रोसेंट, ठीक है। सैंक्रोसेंट मतलब होता है कि उसको आप पवित्र जो बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। इट्स लाइक वेरी प्योर, ठीक है। आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। तो इससे एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम होता था। जैसे आप लोग को पता होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये बस लीगल राइट है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद जब आपका इमरजेंस हुआ सांकरी प्रसाद में, टर्निंग पॉइंट हुआ गोलकनाथ, और जब क्लाइमैक्स आया आपका, क्लाइमैक्स आया आपका केशवानंद भारती में, ठीक है। केशवानंद भारती केस आपका 1973 में, इसमें आया आपका क्लाइमैक्स, क्या आया कि अ बेंच ऑफ 13 जजेस, ठीक है, लार्जेस्ट एवर बेंच था ये, गिव अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, ठीक है। क्या वर्डिक्ट था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यही केस था जब सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर टर्म सामने आया, ठीक है। अब इसका एलिमेंट्स क्या है, व्हाट इज इनसाइड इट, ठीक है। द कोर्ट डिडंट गिव अ फिक्स्ड लिस्ट, ठीक है। ये मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि कोर्ट ने कोई फिक्स लिस्ट नहीं दिया है, बट ओवर टाइम दे एडेड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड एज एंड व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस अराइज, उस टाइम पे कोर्ट अपना अपना जजमेंट देके बताती रहती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर कुछ भी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट केस है, देखो एक तो पूरा जजमेंट का टाइमलाइन है, ठीक है। सांकरी प्रसाद हो गया, फिर उसके बाद तरह तरह के आते रहता है, फिर बीच बीच में अमेंडमेंट भी आता है। जैसे बीच में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा जो कि फिर आपका अपफेल्ड होगा कभी, फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपका शायद 9 शेड्यूल का भी चीजें आएंगी। तो वो पूरा ग्रैंड टाइमलाइन बताना तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। और जो आपका मिनर्वा मिल केस एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हार्मनी बिटवीन एफआर एंड पीएसपी इज इज आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हार्मनी हमें मेंटेन करना है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। और कल का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट है। कल हम लोग जब एक्टिव रिकॉल करेंगे तो उसमें पूरा सिर्फ फंडामेंटल राइट ही करेंगे शुरू से अंत तक। विल ट्राई टू कवर
फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इन टुमारोज वीडियो, ठीक है, ट्राई करेंगे कितना हो पाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वी आर प्रीटी मच डन विद बेसिक स्ट्रक्चर। इसका तो कोई मतलब बहुत डिटेल में बताया जा सकता है, बट आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए, जो कि आपका है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में आपका आर्टिकल 1 to 4 जो है, ये आपका होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 जो होता है वो सबसे पहले आपको बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट अ फेडरेशन, ठीक है। तो मतलब स्टेट्स के पास अलग होने का कोई भी राइट नहीं है। आर्टिकल 2 आपको बोलता है कि आप जब कुछ नया स्टेट अगर आपको लेना हो कभी, मतलब नया आपको कुछ स्टेट क्रिएट करना हो, कोई नया टेरिटरी, तो आप आर्टिकल 2 के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो पार्लियामेंट का कुछ पावर होता है, जैसे कि आर्टिकल 3 जो है आपका, उसमें पार्लियामेंट का पावर है कि पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया विदाउट द स्टेट कंसेंट, ठीक है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अगर कोई चेंजेस करना हो, तो स्टेट का कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। इट कैन चेंज द नेम, इट कैन ऑल्सो चेंज द बाउंड्री और एरिया ऑफ एनी स्टेट बाई सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से वो कर सकते हैं। पर इसमें एक ट्विस्ट है कि क्योंकि फेडरल बैलेंस मेंटेन करना है, तो प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो हमारा जो बिल होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर को बोलेगा, ठीक है, फोन करके बोलेगा कि ऐसा ऐसा है। फोन करके मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि वो रेफर करेंगे, पर फोन तुरंत काट देंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। ये मैं माथुर सर का कॉपी करने जा रहा हूँ, इसीलिए खराब हो रहा है। सर तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि प्रेसिडेंट कॉल करके पूछेंगे स्टेट चीफ मिनिस्टर को, पर वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पर फिर प्रेसिडेंट उनका सुनने के पहले ही प्रेसिडेंट फोन रख देंगे। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि द प्रेसिडेंट जस्ट हैज टू रेफर द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज, बट इट डजंट हैव टू लिसन टू देम, ठीक है। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये बेसिकली आपका टंग ट्विस्टर है, मैं भी जब भी बोलने जाता हूँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। तो वी आर डन विद द आर्टिकल 1, 2 एंड 3। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग इसका इवोल्यूशन देखें एक बार, तो हम लोग का वी हैड अ 4-fold क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा मेसी था कि जो आपका कमीशन थे, धार कमीशन सुना होगा आपने, जेबीवीपी कमेटी सुना होगा आपने, ये लोग ना लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनाना के लिए रिजेक्ट कर दिए थे, ठीक है। पर आफ्टर आपका पोटी श्री रामल्लूज डेथ, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम इनकरेक्टली, पोटी श्री रामुलू डेथ, इसमें आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ था, ठीक है, 1953 में। और फिर फैजल अली कमीशन जो था आपका, उसमें जो आपका फैजल अली कमीशन था, उसमें आपका लैंग्वेज को ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट रिजेक्ट कर लिया गया था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, ये चीज उन्होंने मना कर दिया था। पर ब्रॉडली आप लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते थे। फिर इसी फजल अली कमीशन जो है, इसी फजल अली कमीशन के बेसिस पे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था 1956 में, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया था हमने सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग सिटीजनशिप में आ जाए, यूनियन एंड टेरिटरी भी काफी हद तक हमने कर लिया, और आर्टिकल 4 जो बचा था, वो बस यही बात बोलता है कि आप जो इस पार्ट में चेंजेस करोगे, आर्टिकल 3 में जो चेंजेस करोगे, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 में काउंट नहीं होगा, और आप सिंपल मेजोरिटी से इसको कर सकते हो चेंजेस, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सिटीजनशिप का देखें, तो सिटीजनशिप इज बेसिकली पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट डील्स विद 5 to 11 आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11, ठीक है। 12 से हम लोग का फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है। तो अब बेसिकली अगर हम लोग 5 to 11 देखें, तो 5 to 10 बेसिकली यही लिखा हुआ है कि कौन सा डेट में आने से कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा, जो कि पूरा पूरा फैक्चुअल है, और लास्ट 10 साल में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना। आई विल होप कि अगला साल भी ना पूछा जाए, क्योंकि दिस आर इररिलेवेंट फैक्ट्स, राइट। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको ये समझना है कि सिटीजनशिप की क्या चीजें हैं, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हु बिलोंग्स टू इंडिया बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आपका, वो आर्टिकल 5 to 10 मैंने बता ही दिया आपको। और फिर आर्टिकल 11 जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि इट गिव पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। आर्टिकल 11 अगर नहीं होता, तो हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी नहीं बना पाते, और अगर ये ही नहीं बना पाते, तो हम जो 2019 में उसको सीए एनआरसी ये सब किया था, वो भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का 5 वेज है, ठीक है, 5 ways टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। एक तो हो गया आपका सबसे पहले बर्थ। अगर आप इंडिया में ही बॉर्न होते हो, तो आपको
सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन बेस्ड है आपका ईयर के बेसिस पे, ठीक है। सॉरी। इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट वे देखें हम, तो वो है आपका डिसेंट। डिसेंट मतलब कि बॉर्न आउटसाइड इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स, ठीक है। मतलब आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो, ठीक है, बॉर्न हुए हो, बट आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि जो आपका पीआईओ होता है या फिर स्पाउसेस होता है इंडियन सिटीजन्स का, उनको 7 साल को रहना पड़ेगा इंडिया में, और फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लाइक कि मैं कल को मान लो ब्रिटेन से किसी को शादी करके लाऊं, तो उनको अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो तो उनको 7 साल के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। नाइस जो। अच्छा, इसके बाद नेचुरलाइजेशन पे अगर हम लोग आ जाए, नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फॉर फॉरेनर्स, मतलब शादी वादी कुछ नहीं, किसी को अगर ऐसे ही मन होता है कि वो उसको इंडियन बनना है, तो उनको अराउंड 11 ईयर्स या फिर कुछ एडेड है, इसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, 11 या 12 ईयर्स ऐसे ही कुछ कुछ मंथ्स भी होंगे उसमें शायद, तो उनको यहाँ पे इंडिया में आकर रहना होगा। और भी उसमें कुछ कुछ कंडीशंस है जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उनको नेचुरलाइजेशन से मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप नेचुरलाइजेशन वर्ड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन तक आप चले जाओगे, एंड होपफुली कि यूपीएससी इस पे डेटा से नहीं खेलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट जो वो है वो आपका टेरिटरी का है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका क्या मतलब है कि मान लो आप जैसे कि पौंडीचेरी हमने अक्वायर किया था, तो उसके जो भी रेसिडेंट्स थे वो सब हमारे सिटीजन हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका 5 वेज टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 3 वेज टू लूज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें मैं माथुर सर का कॉपी करूंगा। एक हो गया रेनंसिएशन, ठीक है। मान लो कि आप किसी के साथ हो ऑलरेडी, और फिर आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, और आपने ये बता दिया वॉलेंटरी है, ठीक है, आप पहले वाले को बता दिए फिर आप गए, तो ये हो गया रेनंसिएशन, वॉलेंटरी तरीके से लूज किया आपने सिटीजनशिप। दूसरा जो आता है वो आपका है टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि आप किसी के साथ हो और आप उसको बिना बताए किसी के और साथ चले गए, तो फिर आप पकड़ा गए और आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो है आपका डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है कि जो मैंने कल बताया था कि इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंडियन सिटीजन, कि आप देश के साथ धोखा नहीं करोगे, तो अगर आप फ्रॉड या डिसलॉयल्टी करते हुए पकड़े जाते हो, तो भी आपका जो सिटीजनशिप है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मेंशन करता है कि जो सिंगल सिटीजनशिप चलता है इंडिया में, ठीक है, वी बोरोड दिस फ्रॉम यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया था। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क, ठीक है, मतलब यूएसए में आप यूएसए का भी सिटीजन होते हो, फिर न्यूयॉर्क का भी होता हो, ठीक है। पर इंडिया में आप सिर्फ इंडियन सिटीजन होते हो। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का भी सिटीजन हूँ और वेस्ट बंगाल का भी सिटीजन हूँ। सिटीजन मैं इंडियन ही हूँ, मैं रहता वेस्ट बंगाल में हूँ, ठीक है। मैं बॉर्न एंड बॉट ऑफ वेस्ट बंगाल में हूँ। तो पर अमेरिका में क्या होता है कि हम न्यूयॉर्क का अलग से सिटीजन होते हो और यूएसए का अलग से सिटीजन होते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग ओसीआई देखें एक बार, ओसीआई क्या है? ओसीआई इज नथिंग बट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो पीआईओ था आपका कार्ड, वो स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया गया था 2015 में, ठीक है। ओसीआई अब क्या होता है, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है इंडिया में, तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इसमें क्या है कि एक लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, ठीक है, ओवरसीज जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो दे कैन नॉट वोट, ठीक है, कैन नॉट बाई एग्रीकल्चर लैंड एंड ऑल्सो कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो इनको वोट देने भी नहीं मिलेगा, इनको एग्रीकल्चर लैंड बाई करने को भी नहीं मिलेगा, और पब्लिक ऑफिस भी होल्ड करने का नहीं मिलेगा। इनको बस एक लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, पर ये सिटीजन नहीं होंगे इंडिया का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये तीनों टॉपिक को मोर और लेस थोड़ा बहुत समराइज वे में हमने रिकॉल कर लिया है इसको। आज मेरा गला भी बहुत खराब हो गया। तो अगर हम लोग अब जो अपना नेक्स्ट फेज करते हैं जिसमें हम लोग एक्टिवली रिकॉल करते हैं चीज़ों को, तो वो अगर हम लोग देखें तो आपका जो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग रिकॉल करें, तो आप रिकॉल करो कि कौन सा लैंडमार्क केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बात किया था। वेरी इजी। आई होप कि आप पॉज करके फिर इसका आंसर दो। इसका आंसर हो गया आपका केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाए, तो अब बताओ कि अंडर आर्टिकल 3 डज द पार्लियामेंट रिक्वायर ए स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट।
ठीक है। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया कि कैसे आर्टिकल 3 के अंडर अगर पार्लियामेंट को, जैसे यूनियन को वेस्ट बंगाल का फॉर एग्जांपल मैप के साथ कुछ छेड़छाड़ करना हो तो कर सकते सिंपल मेजोरिटी से। बस प्रेसिडेंट को एक बार वो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को बताना होगा और फिर तुरंत फोन रख देना होगा और फिर उनका सुनना नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। तो वो मतलब उन पे बाउंडेशन नहीं है कि स्टेट क्या बोलता है उसको सुनना जरूरी नहीं, बस इन्फॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, वो है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। ठीक है। तो ये आपका कभी कभी यूपीएससी ना अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक फैक्ट शीट बनाऊंगा। ठीक है। जैसे कि हमने इकोनॉमी के लिए किया है इस संडे को कि मैराथन किया था हमने, और उसका एक चीट सीट बनाया था हमने पूरा इकोनॉमी रिवाइज करने के लिए। वैसा एक पॉलिटी का भी बनेगा, और पॉलिटी जब 21 दिन बाद खत्म हो जाएगा हमारा, उस दिन हम लोग पॉलिटी का भी मैराथन करने का ट्राई करेंगे और उस दिन उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो उसका आंसर हो गया आपका कि 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हमने ये किया था। ठीक है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन जो कि अभी अभी जस्ट हमने रिकॉल किया था कि कैन एन ओसीआई कार्ड होल्डर बाई एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ठीक है। तो द आंसर इज नो, दे कैन बाई रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, बट दे कैन नॉट बाई एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड इन इंडिया। ठीक है। Which commission, अगला क्वेश्चन में जाते हैं, which commission recommended the creation of states on linguistic basis, ठीक है, leading to state reorganization act। तो इसमें तो एक तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा कमीशन ने रिकमेंड किया था, पर आप ये भी बताओ कि कौन सा कमीशन ने रिजेक्ट किया था। मुझे बस एक ही याद आ रहा है, धार कमीशन। मैंने जब अभी रिकॉल किया तब मुझे दो याद थे, पर अभी मुझे एक ही याद आ रहा है कि धार कमीशन ने मना किया था, पर फजल अली कमीशन ने इसको रेकमेंड किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए कि इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, व्हाट हैपेंस टू देयर इंडियन सिटीजनशिप, तो इट इफेक्टिवली गेट्स टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 9। ठीक है। मैंने ये बताया अभी कि अगर कोई वॉलंटरीली या किसी भी तरीके से अगर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो उनका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इज जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर इज यस। इसमें मिनर्वा मिल्स जो जजमेंट हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जुडिशियल रिव्यू आपको पता हो आई होपफुली। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसका एसेंस है आर्टिकल 13 में कि जुडिशियरी एक शील्ड की तरह रहेगा, और कोई भी अमेंडमेंट वगैरह अगर कुछ ऐसा अनलॉफुल हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी हो, तो हम कोर्ट में उसको लेके जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है। ऑल्सो गाइज आज मेरा एनर्जी काफ़ी लो है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर टुडेज सेशन। ठीक है। कल से हम लोग ट्राई करेंगे फिर से बहुत अच्छे से एंगेजिंग सेशन करने का, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा मन नहीं हो रहा है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक द स्ट्रिक। हम ऑलमोस्ट 23 डेज के स्ट्रिक में है, 22 या 23 डेज के स्ट्रिक में। 17 नवंबर से हम लोग कंटिन्यू रोज एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, उसको फिर पोस्ट कर रहे हैं, और फिर कितना आवर्स हो रहा है वो फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, फिर रोज टेस्ट दे रहे हैं। अभी तक 18 इकोनॉमी टेस्ट और एक पॉलिटी जो कि 19 हो गया टोटल, ये सारे हमने टेस्ट भी दिए हैं। और आज पॉलिटी का पहला टेस्ट था, वो भी मैंने स्कोर ऐड कर दिया, इंस्टा पे भी मैं पोस्ट करता हूँ वो ये स्कोर्स। ठीक है। एंड डेफिनेटली नॉट टू गेन पॉपुलरिटी ऑफ फॉर माई सेल्फ एंड जस्ट टू मेंटेन माई ओन कंसिस्टेंसी, एंड ये देख के किसी और को भी कंसिस्टेंट रहने में हेल्प होगा। जैसे शिविन सर अपना मेंस प्रिपरेशन के टाइम अपने चैनल पे एनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट में वो ऐसे ही चीज़ें करते थे, कुछ कुछ सिमिलर चीज़ें, एंड हम लोग देखते थे, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। और देखते देखते एक दिन शिविन सर यूपीएससी में रैंक ला दिए, तो इट वाज अ सरियल मोमेंट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग हिम ऑफ कोर्स। ठीक है। तो यही बस पर्पस है। ठीक है। आपको अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको खुद ही वो करना होगा अचीव, कोई आपके लिए करके नहीं देगा गाइस। ठीक है। तो आई थिंक विल एंड द डे हेयर, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। Keep smiling.